Hey guys, we're moving on to lecture 11 of chapter 3. We are doing strength of acids and bases और आज हम बहुत important topic करने वाले हैं कि solvent का क्या effect होता है on the strength of acids and bases. After the end of the chapter, you will be able to understand solvation. You will be able to compare protic and aprotic solvents और उसमें acids और bases का क्या strength रहता है, and you will be easily able to solve JEE NEET questions from this particular section. तो जनरली अगर हम लोग एसिडिटी रिफ्रेशर एक बार ही करें तो आपको पता है कि एक एसिड जो है वो डिसोसिएट होती है इनटू H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव. तो बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन तब होगी जब कुछ भी स्टेबलाइज करेगा A नेगेटिव को. तो अगर A नेगेटिव स्टेबलाइज होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोटोन ईजिली रिलीज होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिटी. Now the question comes कि why solvent matters. What happens कि अगर हम लोग किसी भी एक एसिड को सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग एसिटिक एसिड ओवर हियर CH3COOH and we are not taking any solvent. We are taking this in the gas phase, and in the gas phase it is seen कि this acid is far weaker than it is in the solution. Okay, gas phase में the pKa value कंसिडर करते हैं अगर हम CH3OH की, तो गैस फेज में इसकी जो pKa वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 130. So मतलब gas constant Ka that will be equal to approximately 10 raised to power minus 130, which means that the acid in the gas phase is going to be very very weak. ओके और अगर इसी को हम लोग लेते हैं इन द एक्वस मीडियम, तो pKa वैल्यू जो इसकी है दैट इज हाई, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.75 एज वी हैव ऑलरेडी डन सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर. 4.5. तो CH3COOH की एक्वस फेज में pKa value is this, so it is going to be a stronger acid. The question is why it is happening. ऐसा क्यों हो रहा है कि गैस फेज में pK वैल्यू 130 है और एक्वस में it is 4.5. That is what we are going to study in today's class. ओके, सो रीजन इसका क्या है कि जब भी एसिडिक मॉलिक्यूल डोनेट करता है एक प्रोटोन, तो अगर हम लोग ले रहे हैं CH3COOH and it is donating a proton and we are getting H positive and we are getting the acetate ion which is CH3COO negative. ठीक है, सो जब भी एसिडिक मॉलिक्यूल डोनेट करेगा प्रोटोन टू अ वाटर मॉलिक्यूल इन द गैस फेज, जो आयंस हैं दे आर फॉर्म्ड और वो ऑपोजिटली चार्ज्ड है. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि if we are taking over here CH3 C double bond O OH plus water और हमारे पास आ गया CH3C double bond O negative plus H3O positive. ठीक है, तो जब भी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डोनेट करता है एक प्रोटोन टू वाटर मॉलिक्यूल इन द गैस फेज, तो यू कैन सी दैट देयर आर आयंस फॉर्म्ड और ये जो आयंस हैं दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड. ओके, तो इनको सेपरेट होना जरूरी है. दे हैव टू बी सेपरेटेड सो दैट द प्रोटोन दैट इज इजिली डोनेटेड. अब सॉल्वेंट अगर नहीं होगा, which means that there is absence of solvent. In absence of solvent, the separation of charges is going to become difficult. तो अगर separation difficult होगी, separation is difficult. अगर separation difficult होगी तो प्रोटोन easily release नहीं होगा. ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड कर लेते हैं आयंस को.
तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट आयन्स बन रहे हैं, वन विच इज नेगेटिवली चार्ज एंड वन विच इज द H3O पॉजिटिव. तो सॉल्वेंट में insulation of the charges is going to take place. The separation becomes easier, as a result of which the ions they are stabilized. ठीक है, and we can easily separate the proton. Hence what we are doing, we are increasing the acidic character. Okay, so we're comparing over here CH3COOH, and we are comparing over here ClCH2COOH. The pKa value of this is 4.75 and the pKa value of this is 2.86, which very clearly indicates that this is a better acid than chloroacetic acid, is a better acid than acetic acid. Okay, so when we're looking at the solvent concept, solvent molecules, they are going to surround and they're going to stabilize the ions. जितनी ज़्यादा stabilization ions की होगी उतनी ज़्यादा dissociation होगी. The release of proton becomes easier and the acidic character is going to increase. ठीक है, अब दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक तो हो गए एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होंगे दैट इज DMSO, दैट इज DMF, एसीटोन, एसिटोनाइट्रिल. तो ये जितने भी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं दे कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डोनेट नहीं कर सकते तो क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं हो पाएंगे, और अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं होंगे, स्टेबलाइज नहीं होगा आयन, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में द एसिडिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, और प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज करेगी कंजुगेट बेसिस को. सो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर ऑफ कोर्स. सो बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जैसे यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर ओवर हियर नाइट्रोजन. ओके, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे टू द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो एटम्स ऑफ एन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, पर दोनों को वो स्टेबलाइज इक्वली कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. बट डेफिनेटली प्रोटिक सॉल्वेंट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैन टेक प्लेस, एंड that will result in the increase in acidic character. ठीक है, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्वा सोल्यूशन. तो वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेट करेगा दोनों को. तो अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, वी टेकिंग ओवर हियर CH3COOH प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया एक वाटर विच इज गिविंग अस CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट करता है इसको भी, और वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट करता है इसको भी. हाउ? बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, सो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो CH3COO नेगेटिव में है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर. तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मच स्ट्रॉन्गर है, तो क्या होगा, द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो वाटर मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सॉल्वेशन इसकी ज्यादा होगी, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एसिडिक कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें जो एनाइन स्टेबलाइजेशन होती है दैट इज पुअर, so that is going to decrease the acidic character. Okay, now if you're comparing water versus ethanol, तो acetic acid is going to appear stronger in water क्योंकि solvation ज़्यादा होगी.
Okay, so solvation, that is how is going to, that is how the solvent is going to matter while we are talking about the acidic character of any organic acids. Apart from this, thermodynamically also जो गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी और एसिडिक कैरेक्टर किस तरह से रिलेटेड है, तो सॉल्वेशन किसी भी स्पीशीज की डिक्रीज करेगी एंट्रोपी. क्यों? क्योंकि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरफ को वो जाएंगे. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू बिकम मच मोर ऑर्डर्ड क्योंकि दे सराउंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट. ओके, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव. अब सॉल्वेशन जब होती है तो CH3COO नेगेटिव जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे तो व्हाट विल हैपन टू डेल्टा एस? डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, तो अब रिएक्शन हमारी अगर हम लोग थर्मोडायनेमिकली करें तो हम बोल रहे हैं कि हमको डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो रहा है? डेल्टा एस हो रहा है नेगेटिव. अगर हम ले रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, so what happens to this quantity? This quantity that is going to become negative and negative, it is going to become positive. ओके, नाउ इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाली जो माइनस टी डेल्टा एस है दैट इज गोइंग टू मेक एन एसिड वीकनिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेल्टा जी. सो माइनस टी डेल्टा एस टर्म ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू डेल्टा जी इन द इक्वेशन देन डेल्टा एच. I hope you have understood till here. So minus T delta S naught term जो है that is going to contribute more than it is more than delta H is contributing. So delta G अगर ज्यादा इफेक्ट हो रही है माइनस टी डेल्टा एस से तो डेल्टा एच नॉट इज नॉट गोइंग टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट फ्री एनर्जी चेंज फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो अब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो चाहिए नेगेटिव. सो डेल्टा एच इज फॉर दिस रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल्स पर मोल. ओके, so both delta H and minus T delta S are more favorable for ionization of chloroacetic acid if we are talking of. तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिकली ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन दिस. सो जो लार्जर कंट्रीब्यूशन जो है वो एंट्रोपी टर्म का है. तो अगर क्लोरोएसिटेट आयन जो है उसको हम लोग स्टेबलाइज करते हैं therefore this is going to become more acidic. So this is all what we are going to do in today's class. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे एज बेसिस. सो टिल दैट टाइम जस्ट स्टे ट्यून्ड.